All right, welcome back. You're watching News X and I'm Riya Dwivedi. Major news coming in. Prime Minister Narendra Modi inaugurates the highly anticipated Z-More tunnel in Jammu and Kashmir, says Sonmarg, in the presence of Chief Minister Omar Abdullah and Union Minister Nitin Gadkari and LG Manoj Sinha. A major news coming in. Viewers, you can look at your screens. That's the latest visuals that are coming in. Prime Minister Narendra Modi has inaugurated Z-More tunnel, which is a major boost to accessibility and connectivity that is being provided to Jammu and Kashmir. This tunnel will make the Sonmarg town accessible from Srinagar throughout the year. Abdullah has also stated that the Z-More tunnel will enable the development of Sonmarg as a winter sports destination akin to the famous Gulmarg skiing resort town. This tunnel has a major significance to boost when it comes to the tourism industry and a major boost to the economy in general of Jammu and Kashmir. Those are the latest visuals that are coming in from on your screen. Prime Minister Narendra Modi has inaugurated Z-More tunnel, this will be a game changer for Jammu and Kashmir and a year-round accessibility and connectivity. And now we're seeing that there's Omar Abdullah, there's Prime Minister Narendra Modi, and other prominent leaders have also joined in. We have the LG Saxena is also present, and Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the Z-More tunnel. Talking about this is a major benefit for tourism and the local economy, and we're also seeing what exactly does this mean for the economy of when it comes to Z-More tunnel. It's poised to become a game changer for connectivity between Kashmir and Ladakh, and it's marking a significant step in establishing an all-weather link between the two regions. You are seeing on your screen Prime Minister Narendra Modi, he inaugurated this landmark project symbolizing a major leap forward in regional development and accessibility. And there's also, you can see that on your screen, this is the latest that's coming in. We also have with us my colleague Ashik Mir joining us on the telecast. Ashik Mir, major news coming in. Prime Minister Narendra Modi has inaugurated Z-More tunnel. It's a game changer for connectivity between Kashmir and Ladakh. बिल्कुल रिया, अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले Z-More टनल की इनॉग्रेशन की है, जो कि एक हिस्टोरिकल कदम माना जा रहा है, क्योंकि ये हाईवे जो है श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है और साथ ही साथ LAC की तरफ जो रोड जाता है, चाइनीज बॉर्डर हो या अगर हम पाकिस्तान से लगने वाला बॉर्डर हो, उसको भी कनेक्ट करता है, क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान जो है इसी रोड पर जो है कनेक्टिविटी होती है। अब से कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है इस टनल की इनॉग्रेशन की है और उनके साथ यूनियन मिनिस्टर्स के अलावा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी थे, जो वहां पर मौजूद रहे। और इस इनॉग्रेशन के बाद जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्कर्स से मिलेंगे, जिन्होंने इस कंस्ट्रक्शन वर्क पर काम किया, इस टनल के प्रोजेक्ट पर काम किया, और उनको शाबाशी भी देंगे, क्योंकि अगर हम बात करें लास्ट ईयर इस टनल पर ही जो प्रोजेक्ट पर काम करने वाले वर्कर्स है उन पर एक टेररिस्ट हमला भी हुआ था, जिसमें लोकल्स और नॉन लोकल्स की भी मौत पता हो गई थी। लेकिन अब जो है प्राइम मिनिस्टर खुद यहाँ पर आए, इस टनल की इनॉग्रेशन सेरेमनी में हिस्सा लिया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो कल भी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ पर लोकल टूरिज्म जो था विंटर सीजन में कट ऑफ रहता था, यानी कोई भी विंटर सीजन में सोनमर्ग जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ का विजिट नहीं करता था। लेकिन अब जो है इस टनल के बनने से यहाँ पर लोग जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ भी आएंगे, जिस तरह से गुलमर्ग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है विंटर के लिहाज से, और इसी तरह अब सोनमर्ग पर भी काम किया जाएगा। और फिलहाल इस Z-More टनल की इनॉग्रेशन हो चुकी है, जो कि 6.5 किलोमीटर का पैच है, और इसके बाद एक और टनल जो है वो बन रही है, जिसे जोजिला टनल के नाम से जाना जा रहा है, और कहा जा रहा है कि वो 2028 तक कंप्लीट हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आती थी, यानी वेदर कंडीशंस के हिसाब से जब यहाँ पर स्नोफॉल होता था तो ये रोड जो है कट ऑफ रहते थे विंटर सीजन में। फिलहाल ये टनल जो है ऑल वेदर टनल बनाई जा रही है,
जिसकी इनॉग्रेशन आज नरेंद्र मोदी ने की है। जी रिया। आशिक मीर, जब हम इस टनल की बात करते हैं तो इससे लोकल स्टेक होल्डर्स हो गए, होटलियर्स हो गए, बिजनेस ओनर्स हो गए, इससे उन पर क्या अफेक्ट आएगा, किस तरह से उनको इससे हेल्प मिलेगी? क्योंकि वो एक ऑप्टिमिज्म है कि टनल के पोटेंशियल दैट लोकल स्टेक होल्डर्स को इससे बेनिफिट मिल सकता है। बिल्कुल रिया, अगर हम बात करें तो जो गगनगीर एरिया है जो कि सोनमर्ग से कनेक्ट करता है इस टनल के जरिए, और सोनमर्ग एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर कई सारे होटल्स बने हुए हैं। यानी जो लोकल पॉपुलेशन है वो टूरिज्म सेक्टर पर ही डिपेंड करता है। अगर हम समर की बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा टूरिस्ट रश रहता है। अगर हम मुल्क की अलग अलग स्टेट की बात करें, वहां से लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि एक अच्छी खासी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन विंटर के सीजन में ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है बंद होती थी और यहाँ पर रोड जो है वो बंद रहते हैं क्योंकि स्नोफॉल काफी ज्यादा होता था। लेकिन यहाँ पर हिली टेरेन्स है, रोड भी काफी ज्यादा हम कह सकते हैं एक्सीडेंटल प्रोन होते हैं जब विंटर पे सीजन होता है। तो ये जो टनल बनाई गई है जिसकी वजह से यहाँ पर अब जो होटलियर्स है वो भी बराबर अब 12 महीने खुले रहेंगे। जो स्थानीय लोग यहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन टूरिज्म सेक्टर के साथ काम करती है तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक बूस्टर रहेगा, क्योंकि उनके लिए जो है अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब एम्प्लॉयमेंट के तौर पर ये टनल जो है एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। सीरिया इसकी बात करी जाए जेड मोर टनल की, इसके स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं? देखिए रिया, फिलहाल ये 5.5 किलोमीटर का पैच जो है तैयार हो चुका है। ऑल वेदर टनल है ये, जहां पर 2 ट्यूब बनाए गए हैं। और फिलहाल अगर हम बात करें इसके अलावा भी कई सारी टनल जो है जम्मू कश्मीर में बन रही है। और दोजिला टनल जो कि बिल्कुल एक ऐसी जगह पर बनाई गई है जहां पर लोगों का चलना विंटर सीजन में कहीं ना कहीं मुश्किल होता था क्योंकि लोग यहाँ से नहीं जा पाते थे। फिलहाल जिस हिसाब से यहाँ पर ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, चाहे हम इन टनल्स की बात करें, और 26 जनवरी पर जो प्राइम मिनिस्टर खुद एक और प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, यानी जो बड़ी बड़ी रेल्स है, यहाँ पर देश की सबसे बड़ी ट्रेन सर्विस जो है वो आने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी सौगात भी है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और अगर हम बात करें जो बॉर्डर एरियाज को कनेक्ट करने वाली ये LAC की तरफ जो रोड जाता है इसी टनल के जरिए, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइनीज के लिए जो है, चाइना के लिए भी कहीं ना कहीं ये मुश्किलें बढ़ा रहा है। क्योंकि बार बार जिस हिसाब से यहाँ पर एक टेररिस्ट हमला भी हुआ, उससे साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि इस तरह के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है कश्मीर में बने। फिलहाल जिस हिसाब से आज खुद प्राइम मिनिस्टर इस टनल को इनॉग्रेट कर रहे हैं, उनके लिए भी एक कड़ा संदेश जा रहा है यहाँ से कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर, और अगर हम बात करें सेंटर की किस तरह से कंसर्न दिखाकर यहाँ पर जितने भी डेवलपमेंटल बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके शिलान्यास के लिए काम चल रहे हैं। जी, We also have with us